Okay, my voice is audible to all. Yes, ma'am. Okay, fine. So let's start with this. In the previous lecture, we have discussed about the software evolution, and we have also gone through the software paradigm. And in the last class, we have gone through the various software development methodologies, and now we are discussing about we have seen in the last class we have seen about the layers of the software engineering, that is the what are the various methods, process and tools that are going to be used. In this particular lecture we are discussing about software engineering view. As you can see in the shared screen that the software engineering view. So what can see? We can see that there is particular customer need. There is a there is a particular customer need. After satisfying the customer need through systematic approach, software is developed, right? So what we can see, we can say that what is the software engineering view? It totally depends upon the criteria which is satisfying the user by using a systematic approach. So as we see, the software मैम वॉइस architecture ब्रेक हो is based on the stakeholder need. सबसे पहले important thing होती है stakeholder need कि Hello, जो ma'am. भी Your user voice is है उसकी breaking. requirement क्या है. I think is the most important. Hello, ma'am. Then is the operational environment of the developed software. Developed software मैम वॉइस environment इज है ब्रेकिंग and yes, Your voice is breaking too much. Your voice is breaking too much, sorry. ma'am. बिल्कुल मुझे वॉइस क्लियर आ रही है. You are saying yes, बिल्कुल. यस मैम You are saying something. मैम वॉइस ब्रेक Yes, होके आ रही है. continue. So software architecture is based upon the stakeholders need. Stakeholders की need क्या है? Operational environment क्या है? And is the software team, the technology awareness of the development team. जो उनकी development team है that technically sound और not, वो इस तरीके के software को develop करते हैं कि नहीं. Those things are going to be part of software engineering. Now अब हम कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की methodologies के बारे में डिस्कस करते हैं कि what are methodologies in software engineering, from where beginning and where it goes on. तो प्रोग्राम में किस तरीके की methodologies का यूज किया गया है that we are going to see in this particular next slot. So let's see this. This is the evolution of the software engineering methodology. Software engineering methodology का यहाँ पर evolution start हुआ है. So it basically it is basically a set of procedures which followed from the beginning to the completion of the development process. जो development process के beginning से लेके end तक start होता है and it goes through the various complexities in programming. So as we can see, there are various methodologies. तो सबसे पहले जो methodology introduce की गई थी, that is exploratory methodology. So what does happen in exploratory methodology? It basically is a, जब शुरुआत में what happens कि requirements are not clear, requirements clear नहीं थी, and at that particular moment it involves experimentation and exploring the program. उसमें experimentation करना था और explore करना था program by step programming के थ्रू. So in that case, exploratory methodology is uses, and this methodology totally depends upon the previous step. And errors कब identify होते थे? Errors are only identified when final product is tested. So this is going to be the first methodology which is going to be used जब हमारी जो भी requirement थी वो clear नहीं थी
और उनको एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर करके सॉफ्टवेयर को बनाया जाता था स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग के थ्रू। लेकिन उसमें एरर्स कब आइडेंटिफाई होते थे? ओनली व्हेन द फाइनल प्रोडक्ट इज बिल्ट। सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट मेथोडोलॉजी पे स्विच किया गया कि जिसमें यूजर के जिस पर प्रोग्रामर के इतने एफर्ट पुट किए गए हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, लेकिन द बग्स आर ओनली आइडेंटिफाइड एट द एंड। अगर शुरुआत में ही वो चीज़ पता चल जाएगी तो इट विल बी इजी टू ट्रेस द प्रॉब्लम एंड इट कैन बी सॉल्व एट द बिगनिंग में ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। The next one is the next methodology is structure oriented methodology, and the structure oriented methodology it basically focus on procedural approach। ये किस पर फोकस होती है? procedural approach पे, and concentrates it concentrates basically on डेवलपिंग फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स पे डिपेंड होता है। प्रोसीजर्स तो किस तरीके से अपने फंक्शंस और प्रोसीजर्स को डिजाइन कर रहे हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन दिस आर सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं: सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन। एंड इट ऑल्सो यूजेस a variety of notations यूज होते हैं स्ट्रक्चर ओरिएंटेड में। डेटा फ्लो डायग्राम ये बताता है कि किस तरीके से हमारा जो फ्लो है किसी पर्टिकुलर कंटेंट के थ्रू, तो वो किस तरीके से फ्लो हो रहा है। अगर यूजर किसी एडमिन से कनेक्ट होना चाह रहा है तो व्हाट शुड बी द पर्टिकुलर प्रोसेस टू फॉलो दैट। तो उस पर पर्टिकुलर फ्लो को ऑब्जर्व किया जाता है और देखा जाता है कि किस तरीके से यूजर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो दैट गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड। इज माय वॉइस ऑडिबल टू ऑल? मेरी वॉइस आ रही है सभी को कि नहीं आ पा रही है? अगर मेरी वॉइस इन केस नहीं आ पा रही है तो मैं आपको इसका वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगी। तो इन दैट पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर यू कैन गो थ्रू एंड यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू माई यूट्यूब, जहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, और जो भी करंट लेक्चर है इसकी भी मैं आपसे लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है, so don't bother about it if there is any kind of problems, so you can go through a video lectures. Okay, so let's continue with this. The 3 basic elements are sequence, selection and iteration. As you have already learned about the sequence, selection and iteration, कि sequence क्या होता है? in a particular flow किसी भी particular process को complete करना, तो उसे हम क्या कहते हैं? sequential। ठीक है, कि sequence में उस particular चीज को complete करना। ठीक है, सिलेक्शन क्या होता है? जब हमारे पास कंडीशन आ जाती है, इफ के साथ जो कंडीशंस है वो एप्लीकेबल होंगी, या एल्स के साथ जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल होंगी, तो दैट में बी द सिलेक्शन कंडीशन। इटरेशन मीन्स थिंग्स आर गोइंग टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन एन इटरेटिव मैनर। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी अ काइंड ऑफ अ लूप। फॉर लूप में कैसे इटरेटिव मैनर में शुरू किया जाता है? पहले इनिशियल कंडीशन चेक की जाती है, इनिशियल कंडीशन के बाद क्या चेक किया जाता है? कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो लूप के अंदर जाता है, एंड देन द फाइनल कंडीशन दैट इज द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो भी उसमें कंडीशन गिवन रहेगी वो फॉलो करते हैं। So these are the particular basic elements which are going to be used in structure oriented methodology. Next is there are variety of notations which are used such as data flow diagram, context free diagram and ER diagram. ठीक है, so as we can, yes, my voice is audible or not? No, no, no. So what happened there कि वहाँ पर please किसका माइक अनम्यूट है? there is quite a disturbance. डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। anybody's mic is unmuted to kindly mute your mic. Okay, so what we have seen कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। डेटा फ्लो डायग्राम रिक्वायर्ड होता है, कंट्रोल फ्लो डायग्राम रिक्वायर्ड होता है, ईआर डायग्राम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है,
ठीक है। तो बेसिकली जो डेटा फ्लो डायग्राम है, कंट्रोल फ्लो डायग्राम है और ईआर डायग्राम है। तो व्हाट हैपेंस इन दिस, जैसे कि हमने देखा है कि जो हमारा ईआर डायग्राम होता है वहाँ पर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। द थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज एंटिटी, एंटिटी एंड रिलेशनशिप, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसको हम कहते हैं ईआर डायग्राम। तो दो थिंग्स आर ऑब्जर्व कि जो हमारा एंटिटी डायग्राम है जिसमें ऑब्जर्व किया जाता है कि जो हमारा डायग्राम है उसके अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एंटिटीज, एंटिटीज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, सर्कल के फॉर्म में हमारे एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और इनसे क्या कनेक्टेड रहती है, हमारे जो भी एंटिटीज है वो इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करती हैं किसी भी एंटिटी में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी कोई सा भी एक डेटा को हम ले सकते हैं और उस हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर वी कैन डू समथिंग लाइक वी कैन यह डायग्राम में हम क्या मेंशन कर सकते हैं, वी कैन मेंशन व्हाट, वी कैन मेंशन यह डायग्राम के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं कौन कौन सी एंटिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे इसमें एंटिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, फॉर एग्जांपल हमारे इसमें अगर एंटिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर कोई एक स्टूडेंट है, इफ देयर इज अ स्टूडेंट, ठीक है, अगर हमारे पास एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, उसका रोल नंबर हो सकता है एक एट्रीब्यूट, राइट, और दूसरा एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, इट कैन बी देयर नेम, उसका नेम हो सकता है। तो दोज ऑल मे बी द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई कि किसी भी हम ईआर डायग्राम के अंदर स्टूडेंट और हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एंटिटीज को रिलेट कर सकते हैं। सो रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिलेट बाय यूजिंग अ डायमंड शेप। डायमंड शेप का यूज किया जाता है फॉर रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन, और इसको हम फिर किसी और एंटिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दैट मे बी अ टीचर, वो टीचर हो सकता है। सो वी कैन शो हाउ डज ईआर डायग्राम वर्क। तो इस तरीके से डेटा फ्लो डायग्राम भी होता है जहाँ पर किसी भी दो पर्टिकुलर यूजर और एडमिन, जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी किस तरीके से मेंशन की गई है, दैट ऑल पर्टिकुलर थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व। उन सबको क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, क्लियर दिस मच। चलो अब हम आगे क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड के बाद द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नेक्स्ट थिंग इज after structure oriented, next thing is data structure oriented methodology. So data structure oriented methodology, it basically concentrates more on designing. ये किस पर फोकस करती है, it basically focuses on, इट बेसिकली फोकस ऑन डिजाइनिंग डेटा स्ट्रक्चर, कि डेटा स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, रेदर देन ऑन प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल। प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल पर कम फोकस किया जाता है, एंड द मेन फोकस इज ऑन द डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, एंड हियर it basically helps to determine program structure, which plays an important role in the execution of the program. The main emphasis is totally based on the program स्ट्रक्चर एंड एक मेथोडोलॉजी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1917 में, जिसे कहा है JSD, जैक्सन स्ट्रक्चर डिजाइन मेथोडोलॉजी। So this methodology is going to be used in the data structure oriented methodology, real world से रेट करने के लिए कि how does it connect. Next is what? मैम ये Next is मेथडोलॉजी क्या होता है? मेथोडोलॉजी मतलब तरीके हैं, कौन कौन से तरीकों का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो हमने वही सारे डिस्कस करे हैं शुरू से लेके एंड तक, कि हम कौन कौन जैसा सी सॉफ्टवेयर बनाना है। मेथोडोलॉजीज हम यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर मेथोडोलॉजीज वी आर डिस्कसिंग वन आफ्टर द अदर। अभी हमने डेटा स्ट्रक्चर देखी थी, अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी के बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है,
So let's discuss about this कि totally हमारा जो object oriented methodology है, object oriented methodology, it's based on what, जो हमारी object oriented methodology है, it basically emphasize on the use of data rather than functions. ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज में ऑब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करती है, जैसा कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फोकसेस मोर ऑन द डेटा, डेटा पर ज़्यादा फोकस करती है कि जो आपका डेटा क्लोजली बाइंड हो, प्रोसीजरल अप्रोच फॉलो हो, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो हमारा ज़्यादा क्लोज हो, उसमें हम ज़्यादा फंक्शंस और डेटा पर काम करते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व प्रॉपर्टीज एंड मेथड। किसी भी ऑब्जेक्ट में हमने दो टर्म पढ़ी हुई हैं, प्रॉपर्टीज एंड मेथड। प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज बेसिकली आइडेंटिफाई कि वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से बिहेव करती है, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रॉपर्टीज। एंड व्हाट डज मेथड डिनोट? Method denotes a block of instructions that can be executed by an object itself, and each object has its own set of methods. खुद के अपने मेथड्स होते हैं और खुद की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फॉलो किया जाता है। तो दिस इज द थिंग विच इज फॉलोड इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथडोलॉजी। तो अभी हम सब एनालिसिस कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग जो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो उसमें प्रोग्रामिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, और प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन से मैथडोलॉजीज को, कौन कौन से मेथड्स को यूज़ किया गया था। तो शुरुआत में उसकी बिगनिंग की गई थी। It starts with the structure oriented methodology, then move on to the data structure oriented methodology, after then it moves to object oriented methodology. And the last one is the component methodology. Component based methodology, component based methodology में हम क्या डिस्कस करना चाहें? component में ये डिस्कस करना चाहें कि जो भी हमारा प्रोग्रामिंग है, इफ का जो प्रोग्रामिंग है इट्स ऑफ स्मॉल कॉन्टेक्स्ट, अगर वो चीजें काफी हद तक छोटी हैं तो हम इजीली किसी भी फ्लो कंट्रोल डेटा स्ट्रक्चर को इजी आसानी से समझ सकते हैं। वही हमारा कॉन्टेक्स्ट लार्ज प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट बनता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हैव टू थिंक talking about components, उसके components बनाते हैं and then we are going integrated, को दोबारा integrate जाता है। So this is very important methodology which is going to be used by the programmer, and this particular component methodology was introduced in 21st century, which is system analysis and design methodology. इस टेक्नोलॉजी में भी किस चीज पर फोकस किया गया था? इट इज बेसिकली फोकस द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूज। ये अगर एक बार किसी भी फंक्शन को बना दिया गया है, तो हाउ वी आर गोइंग टू रीयूज दैट पर्टिकुलर टूल्स, तो ये टोटली उसी पर ही बेस्ड है। एंड आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इज आल्सो बेस्ड ऑन रीयूजिंग, रीयूजेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जो कॉम्पोनेंट methodology है, it also emphasizing using component which can be independently stored and assembled, जिनको independently कर सकते हैं, उनको उनको different component में different modules पर रख सकते हैं, and then finally it can be integrated, it can be assembled to a single software. Particular methodologies which are going to be used. ये methodologies हैं जिनका किया गया था from the beginning का। Here is the characteristic of the software. यहाँ characteristic किया गया है सॉफ्टवेयर का कि जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से काम करता है। So the characteristics of software show software is developed or engineered, it is not manufactured. सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है? डेवलप या मैन्युफैक्चर किया, डेवलप्ड और इंजीनियर, लेकिन मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है। There are various similarities which do exist between the software development और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और हार्डवेयर में कई सारी सिमिलैरिटीज देखी जाती हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज इन दोनों की डिफरेंट है। एक तो क्या इम्पोर्टेंट चीज हम कहेंगे कि हाई क्वालिटी इज अचीव थ्रू गुड डिजाइन। अगर बहुत अच्छी डिजाइन बनी है
तो उस डिजाइन से हमें हाई क्वालिटी मिल सकती है, ठीक। एंड the manufacturing phase for the hardware can introduce quality problems than software. सॉफ्टवेयर से ज़्यादा अगर कुछ क्वालिटी इश्यूज आएंगे तो हार्डवेयर में आ सकते हैं, ठीक। नाउ देयर इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजीज। जो भी अभी हमने इतनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजीज पढ़ी हैं उनका एक पर्टिकुलर चार्ट गिवन है जिसमें हमें प्रोग्रामिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज दिख रही हैं और प्रोग्रामिंग की टेक्नोलॉजी दिख रही है। तो हमारी शुरुआत की जो थी दैट इज एक्सप्लोरेटरी मेथोडोलॉजी, एक्सप्लोर किया जाता था, टेस्ट किया जाता था, छोटे छोटे करके प्रोग्राम बना के कि इट इज एग्जीक्यूटिंग और नॉट। देन इट मूव्ड ऑन टू द स्ट्रक्चर ओरिएंटेड जहाँ पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग की बात हुई। देन इट मूव्ड ऑन टू द डेटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड जहाँ पे जैक्सन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल की बात की गई, पैरेलल प्रोग्रामिंग की गई। देन इट मूव्ड ऑन टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जहाँ पर कई सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को यूज किया गया। एंड फाइनली इट मूव्ड ऑन टू द कंपोनेंट प्रोग्रामिंग जहाँ पर लार्ज प्रोग्राम्स को बनाने के लिए कंपोनेंट में काम किया गया, उनको डिफरेंट डिफरेंट different modules में divide किया गया and then finally it is going to be assembled and integrated into a single product. तो इस तरीके से इन चीजों पर काम किया गया। So we have gone through the overview of the software engineering view and its various methodologies and its evolution, right? So what we have discussed till now, हमने सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजीज को डिस्कस किया हुआ है, ठीक। एंड another my question is that आप सभी लोग के असाइनमेंट चल रहे हैं। मैंने आपको पीपीटी 1 जो लेक्चर की पहले हमारी लेक्चर 1 की पीपीटी थी और लेक्चर 2 की पीपीटी है, तो ये दोनों पीपीटीज के आपको असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व करने थे। हैव यू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस? हैव यू गॉन थ्रू दैट? करें आप लोगों ने?